Hello students, good morning. I am a science teacher from Shri Ram Academy High School and I have come to your door to educate you people through audio and video lectures. So students, in this particular lecture we will be starting the subject for science for 6th class, and in the previous classes we started the chapter number 1, that was food, where does it come from. Okay, so in this lecture also we will be continuing the same chapter, and in the last lecture we learned how what we food eat and what are the ingredients and what are the sources of those ingredients we learned from in the last lecture. Okay, so we learned that the sources of our food items or the ingredients of our food are basically from plants or animals. Now in this lecture we will be learning which part of plants and what animal products as food we eat. Okay, so basically starting from plants, so the parts of plants must be clear to you. First of all, you have learned in your primary classes, in your previous classes, that there are different parts of plants, such as there are the part below the ground is called as roots, the part above the ground is called as stem, the part which is connected when branching, there are different sections coming out from the stem, this is called as branch. Okay, I have not labeled it, but it is branch. Okay, branches. So here it is branches. These green broader plants, parts of the plant is known as leaf. There are flowers, there are fruits, and there are birds. Birds are basically the initial stage of flower when they are to be blossoming. Okay, they start to blossom. Before blossoming they are in the form of buds. Okay, so these are the parts that different parts of plants. Now interesting fact is that we generally eat almost every part of plant, not of a single plant, but from different type of plants we eat different parts of plants, such as, for example, plants are one of the sources of food. This thing is clear to everyone. Okay, कभी कभी क्या होता है, sometimes we eat leafy vegetables. आपने देखा होगा स्पिनच खाते हैं हम लोग, ठीक है, और इस तरीके की सब्जियां जिसमें पत्तेदार होती हैं, ठीक है ना, पत्ते जिसमें होते हैं उनको हम खाते हैं, पालक वगैरह, स्पिनच हो गया, ठीक है, भाजी जिसको बोलते हैं, तो ये सब हम क्या करते हैं, लीफी वेजिटेबल्स किसी किसी की खाते हैं, ठीक, फ्रूट्स खाते हैं, एप्पल, ऑरेंज, ओके, सम फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स, किसी किसी के सिर्फ फ्रूट्स ही खाते हैं, बाकी उनके पत्ते नहीं खाते हैं, ना ही उनके स्टेम्स खाते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं, किसी किसी के रूट्स खाते हैं, जैसे हम कैरेट्स वगैरह खाते हैं, कैरेट रेडिश, ये सब क्या हैं, रूट्स हैं। ओके, समटाइम्स स्टेम खाते हैं, किसी किसी प्लांट का हम स्टेम खाते हैं, किसी किसी का फ्लावर खाते हैं। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स के क्या खाते हैं, डिफरेंट पार्ट्स खाते हैं। अब बात ये आती है, किसी एक पर्टिकुलर प्लांट में, किसी एक प्लांट में जो भी पार्ट खाने लायक होता है उसको क्या कहते हैं, हम एडिबल कहते हैं, एडिबल पार्ट, है ना, जो खाने लायक होगा उसको क्या कहेंगे, हम एडिबल पार्ट कहेंगे, ईटेबल, जिसको हम खा सकते हैं, जिसको खाने से हमें नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना। एंड जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें दो या दो से ज्यादा पार्ट्स होते हैं जिनको हम खाते हैं, जैसे कि मस्टर्ड का प्लांट होता है, सरसों का पेड़ होता है, उसके जो सरसों के बीज होते हैं, सीड्स, उनसे क्या मिलता है हमको, वी टेक ऑयल फ्रॉम दैट, एंड द लीव्स वी ईट एज द लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स। हम क्या करते हैं, उसकी जो लीव्स होती हैं, लीव्स को क्या करते हैं, एज वेजिटेबल खाते हैं, ठीक है। तो सीड्स आर यूज्ड फॉर ऑयल, टू गिव अस ऑयल, एंड लीव्स आर यूज्ड फॉर वेजिटेबल्स। ओके, तो ये एग्जांपल है कि एक ही पेड़ से हमें दो या दो से ज्यादा चीज खाने की मिल जाती है, ठीक है, किसी किसी से एक ही मिलती है, किसी किसी से 3 मिल जाती हैं। तो देयर आर डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट्स दैट वी ईट, plant parts that we eat basically. Now the thing is, there is a caution, every plant is not eatable. Okay,
देयर इज एवरी प्लांट इज नॉट ईटेबल। अननोन प्लांट्स को आप टेस्ट मत करिएगा घर में, कहीं भी जाते हैं तो अननोन प्लांट्स को खाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि क्या हो सकता है, वो पॉइजनस हो सकता है। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट दैट डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल और नॉट। ठीक है, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस, कुछ जहरीले भी हो सकते हैं। ठीक है, जहरीले मैंने कहा ना कि सारे प्लांट्स हम नहीं खाते हैं, कुछ हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं। ठीक है, जो एडिबल होते हैं, जो मार्केट में मिलते हैं हमें, या जो हम उगाते हैं, जिनकी हम खेती करते हैं, वो हम क्या करते हैं, सिर्फ उन्हीं को खाते हैं, बाकी सारे प्लांट्स को हम नहीं खाते हैं। ठीक है, सो देयर आर स्पेसिफिकली सम प्लांट्स दैट वी ईट। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, that is the activity of 5, activity 5 of your book, sprouting of moong and chana. So students, I think this is something similar, you have read it. Sprouting you have learned in your class 5th. Okay, you have done an activity of sprouting moong or and chana. तो यहाँ पर भी एक रिवीजन टाइप से आपके इस बुक में भी स्प्राउटिंग की एक्टिविटी है, यू हैव टू परफॉर्म इट। एक कंटेनर लेना है, उस कंटेनर में क्या करेंगे, पानी लेंगे, पानी क्या करेंगे, पानी में कुछ चने, ड्राई चना या फिर ड्राई मूंग डाल देंगे। ठीक है, और उसको थोड़े से डालेंगे, ज़्यादा नहीं, और 1 दिन तक उसको क्या रखना है, उसी में सोक करके रखना है। सोक्ड चना had to be left for 1 day. Okay, then after 1 day you will drain out the water. पानी निकाल दीजिए। पानी निकालने के बाद जो चना बचेगा, चने को एक क्लॉथ में बांध दीजिए। क्लॉथ में निकाल करके, कपड़े में निकाल करके उसको क्या करेंगे, बांध लेंगे, जस्ट लाइक दिस, पोटली बना लेंगे उसकी। एंड यू हैव टू हैंग इट एट सम प्लेस इन योर किचन और योर विंडो। Okay, then you will see it is to be left for 1 day. 1 दिन के लिए उसको छोड़ देना है। इसी तरीके से 1 दिन बाद क्या देखेंगे, इसमें क्या हो रहा है, कुछ इस तरीके के वाइट पार्ट निकलकर सामने आ जाएंगे। अर्लियर चना वाज लाइक दिस। ठीक है, ये पतला सा दुबला सा था, बिल्कुल ऐसा हार्ड सा, लेकिन थोड़े दिन जब आप ऐसा उसको करके रख देंगे, सोक करने के बाद वो कैसा हो जाएगा, देयर इज अ वाइट पार्ट इन एमर्ज फ्रॉम दिस चना। दीज टाइप ऑफ सीड्स, ये जो स्प्राउटिंग है, इससे जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, दे आर वेरी रिच इन प्रोटीन एंड फाइबर्स। ओके, सो यू मस्ट ईट दीज चनास एज योर फूड इन द मॉर्निंग्स, ओके, और इन योर ब्रेकफास्ट। सो स्टूडेंट्स, हमने ये समझ लिया था कि यहाँ पर क्या स्प्राउटेड सीड्स हमारे लिए क्या होते हैं, कैसे बहुत ही यूजफुल होते हैं, बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि इनमें प्रोटीन एंड फाइबर्स होता है। ओके, फर्दर हम बात करेंगे कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स के बारे में। एनिमल प्रोडक्ट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे हनी। वेयर डू वी गेट हनी? हनी बेटा कहाँ से मिलता है हमें? तो हनी बेटा मिलता है हमें बीहाइव से। बीहाइव कहाँ होता है? बीहाइव क्या होता है बेटा? बीहाइव इज द होम ऑफ बीज। ठीक है, ये जो मधुमक्खियां होती हैं, इनका घर होता है कहाँ? बीहाइव में होता है। अब बीहाइव में हनी कहाँ से लेके आती है बेटा? दे गेट हनी फ्रॉम फ्लावर्स। कैसे लाती हैं बेटा? यहाँ पे जाती हैं, जब भी फ्लावर्स आते हैं जिस सीजन में, उस सीजन में ये आकर के यहाँ पर क्या करती हैं? नेक्टर कलेक्ट करती हैं। नेक्टर, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज नेक्टर? नेक्टर इज द स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर्स। फ्लावर्स से जो स्वीट जूस होता है, उसको ये कलेक्ट करके फ्लावर्स से लेके जाती हैं और अपने बीहाइव में इकट्ठा कर लेती हैं, मतलब स्टोर करती हैं वहां पर। और स्टोर ऐसे करती हैं कि पूरे साल भर का खाना उनके लिए उसी से हो जाए। क्यों बेटा, क्यों ऐसा साल भर के लिए क्यों करती हैं? क्योंकि जो फ्लावर्स हैं सीजन में ही आती हैं, कुछ सीजन्स के लिए ही होते हैं, और फिर उसके बाद फ्लावर्स जब हट जाते हैं तो फिर वो फूड उनको कहाँ से मिलेगा? तो पूरे साल के लिए क्या कर लेती हैं? हनी, नेक्टर कलेक्ट करके रख लेती हैं, और उसको ये हनी के फॉर्म में ये स्टोर हो जाता है, किसमें? बीहाइव्स में। ओके, सो दिस वे these bees collect the honey. Okay, now how do we get it? We get it by collecting, getting this beehive and
स्क्वीजिंग आउट द हनी फ्रॉम दीज बीहाइव्स। ओके, जैसे हम इससे स्क्वीज आउट कर लेते हैं हनी, तो हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, तो हमको ये हनी मिल जाता है फ्रॉम दीज बीहाइव्स। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट इज मिल्क। ओके, मिल्क कहाँ से मिलता है बेटा? मिल्क वी गेट फ्रॉम एनिमल्स लाइक काउ, गाय, गोट, बकरी एंड बफेलो मीन्स भैंस। ठीक है, तो इस तरीके से 3 जानवर हैं, और भी एनिमल्स होते हैं जिनसे हमें मिल्क मिलता है, लेकिन मिल्क से बने हुए और भी कई प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमें मिलते हैं, जिनको हम एज अ फूड खाते हैं, जैसे चीज हो गया, घी, बटर, ओके, कॉटेज चीज। कॉटेज चीज इज बेसिकली पनीर, है ना। तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स हमें किससे मिलते हैं? मिल्क से मिलते हैं। अब फर्दर एक और चीज आती है, एग्स एंड मीट। हमें कहाँ से मिलता है? हैन एंड कॉक से मिलता है। ये जो चीजें हैं, ये सारे क्या हैं? these three are the products we obtain from animals. These are food products. Animals से हमें मिलते हैं। Okay, so this was all about this lesson. Thank you so much.